Assalamu alaikum. Now we shall be studying in continuation with the systemic arterial blood pressure, the rapid control of arterial blood pressure. Now we are going to study the rapid acting measures which can be used by the body to normalize the BP. अब इसमें हमारी बीपी हाई और लो दोनों तरह हो सकता है किसी भी अचानक वजह से। तो जो रैपिड एक्टिंग मेजर्स when blood pressure is low are very important, and they are utilizing the CNS, that is neurogenic. It is neurogenic management and it occurs within second. The vasomotor center and the cardiovascular center is involved in it, and the receptors for it are arterial baroreceptors, the arterial chemoreceptors, as well as the CNS ischemic response. अभी आपको नहीं पता CNS ischemic response क्या होता है, इसे हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। आपको क्वेश्चन आता होता है कि enlist the rapid acting measures of management of hypotension कहते हैं डिक्रीज ब्लड प्रेशर को। उसमें आपको लिस्ट लिखनी होती है, तो उसमें आपको दोज इन्वॉल्विंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दोज इन्वॉल्विंग द नॉट इन्वॉल्विंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो का आपने कैटेगराइज करना होता है। The time range for those that are not involving the central nervous system is not within seconds. It is from half hour to several hours. It starts quite early, but it finishes off later on. So these are renin, angiotensin 2, vasoconstrictor mechanism, इसे हम अभी पढ़ेंगे, vasopressin, endothelin, the capillary shift phenomena, and the stress relaxation changes in the blood vessels. Now, intensity of the rapid responses decreases with time, कि जब आपका बीपी एकदम लो हुआ था उस वक्त तो सारे के सारे responses जो थे, those involving the CNS and those not involving the CNS, वो एकदम अपनी फुल ब्लूम पर एक्ट किए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बीपी नॉर्मल की तरफ आता है, इनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, और इसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। Now, just to enumerate that there are other measures that will be that are used to manage the hypotension. We also talk about the slowly acting measures, although they are not the ones that are involving the CNS, they are not the rapid acting measures. जो जब आता है ना उसमें एग्जाम में या तो आता है लॉन्ग एक्टिंग measures या आता है रैपिड एक्टिंग measures, लेकिन चूंकि measures to control the BP में हमें इसे लिखना है, इसलिए सिर्फ इसको हम मेंशन कर रहे हैं। स्लोली एक्टिंग measures में देयर इज रेनिन, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। पिछले वाली लिस्ट में था रेनिन, एंजियोटेंसिन 2, vasoconstrictor mechanism. इस लिस्ट में है renin, angiotensin 2, aldosterone mechanism. Then there is glomerulotubular balance, and the third one is atrial natriuretic peptide. Atrial natriuretic peptide is also called ANP. आपने बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की डिटेल पहले पढ़ ली है, सो बाकी चीज़ों की डिटेल थोड़ी थोड़ी जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी अब हम देख लेते हैं। कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कीमो रिसेप्टर्स इन द कैरोटिड बॉडी एंड इन द एओर्टिक बॉडीज। जब आपने तस्वीर देखी थी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, तो वहाँ पर फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स थी, दैट वर बेरोरिसेप्टर्स, और उसके ऊपर एक येलो कलर की गोल सी चीज़ थी जिसका नाम था कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर इसका नाम था कैरोटिड बॉडी, और उसके अंदर आपके पास थे कीमो रिसेप्टर्स। ये रिफ्लेक्स जो है ये हाइपोटेंशन में काम आता है, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो जाए और वो कहें कि कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इसे हेल्प करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इज इफेक्टिव इन हाइपोटेंशन when the blood pressure ranges from 40 to 80 millimeter of mercury and baroreceptor control becomes weaker, then the chemoreceptors come into action and they become powerful for control of। हाँ जी, आप उधर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ सर्कुलेशन। chemoreceptors are definitely powerful for control of respiration, but when the BP goes down between 40 to 80 millimeter of mercury pressure, then at that time the baroreceptor control becomes weaker and the chemoreceptor control is the most powerful for the control of circulation.
रिसेप्टर्स इन इट आर कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज, ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, और अब आप इन्हें रेस्पिरेशन में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे. We are lucky that we are studying respiration alongside, so many things that could not be understood in this lecture if it were alone, the respiration lecture will help you in understanding these things. Stimulus for chemoreceptors to trigger is decreased PO2 and pH, यानी acidity और hypoxia, and increased PCO2, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाए और एसिडिटी हो जाए तो फिर ये स्टिमुलेट होते हैं. ये जो PO2 इसका डिक्रीज है, दैट इज बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ऊपर जो था वो हम पढ़ रहे थे ब्लड प्रेशर 40 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और यहाँ पर तो रीजन क्या है कीमोरिसेप्टर के स्टिमुलेट होने की, दैट इज डिक्रीज इन PO2 below 60 millimeter of mercury partial pressure of oxygen, decrease partial pressure of oxygen below 60 millimeter of mercury, or decrease in pH or increase in PCO2. The efferents go via the Herring's nerves and the vagus nerves, that is 9th and the 10th cranial nerves, to the respiratory center and the vasomotor center. The efferents via the sympathetic nerves come back to stimulate the heart and the blood vessels. The heart is stimulated by sympathetic nerves and by inhibition of the parasympathetic to the heart. जब भी sympathetic stimulate होंगी, parasympathetic to the heart inhibit हो जाएंगी. आप अगर एक वक्त में गाड़ी चला रहे हैं तो जब आप रेस पर पाँव रखते हैं तो ब्रेक पर से उठा लेते हैं, जब ब्रेक पर रखते हैं तो रेस पर से उठा लेते हैं. So when the sympathetic nerves are stimulated, the parasympathetic nerves are inhibited, the two simultaneously stimulate the heart, और ब्लड वेसल्स जो हैं उनके लिए वाजोमोटर सेंटर से इम्पल्सेस आती हैं. द इफेक्ट इज इंक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम, and an increase in the total peripheral resistance by vasoconstriction to increase the BP. Cerebral ischemic response is a third response because of decreased blood flow, decreased blood pressure. This is due to decreased blood flow to the brain, and it happens when the mean blood pressure decreases below 60 millimeter of mercury. This will decrease the cerebral blood flow and of the vasomotor center as well, producing hypoxia, increased carbon dioxide and acidity in the vasomotor center. The vasomotor center will respond by increasing the heart rate and causing vasoconstriction to save the brain, maximally seen when the BP is as low as 10 to 15 millimeter of mercury. The BP can reach to 250 millimeter of mercury from 60 millimeter of mercury at least for 10 minutes. इसका मतलब ये है कि जब आपका पेशेंट 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर है तो सारी बॉडी के अंदर इतनी वाजोकंस्ट्रिक्शन होगी और हार्ट रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा. स्ट्रोक वॉल्यूम तो इंक्रीज हो नहीं सकता हेमरेज में, लेकिन हार्ट रेट इंक्रीज होगा और वाजोकंस्ट्रिक्शन इतनी सीवियर होगी कि 10 मिनट तक के लिए वाजोमोटर सेंटर को जिंदा रखने के लिए बीपी को बढ़ाया जाएगा. इट मे गो अप टू 250 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन द बॉडी. तो अब आप ये कहेंगे कि जनाब 250 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो बॉडी में वाजोकंस्ट्रिक्शन से बीपी हुआ है तो ब्रेन में भी तो वाजोकंस्ट्रिक्शन हो गई होगी. यहाँ पर आपके ये वाइवा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक स्टूडेंट्स के लिए. यहाँ पर आपको ये बताना है कि ब्रेन में वाजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती और उसकी दो वजूहात हैं जो मैंने आपको लोकल सर्कुलेशन की एक्सप्लेनेशन में बताई थी. पहली वजह यह है कि अल्फा रिसेप्टर्स नहीं होते ब्रेन में जो नॉरएड्रेनालिन को वाजोकंस्ट्रिक्शन के जरिए रिस्पॉन्ड करें, इसलिए ब्रेन में वाजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती. दूसरे वहाँ पर जो लोकल ब्लड फ्लो है उसका कंट्रोल हाइपोक्सिया, एसिडिटी और इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लोकली वहाँ पर वेजोडाइलेशन होती है. तो ये दो चीज़ें ब्रेन को हेल्प करती हैं, लेकिन ब्लड को तो वहाँ तक फ्लो करना है ना ताकि वेजोडाइलेशन से ब्लड वहाँ पहुँचे. तो उसके लिए बॉडी का बीपी सारा का सारा रेस करके और बॉडी में वेजोकंस्ट्रिक्शन करके ब्रेन को बचाने की कोशिश करते हैं. इतना ज़्यादा कि स्किन का, बोन का, किडनी का, लिवर का, जीआईटी का, मसल्स का, इन सब का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि किसी तरह ब्रेन को मिल सके ब्लड और ब्रेन जो है वो बच जाए.
नाउ वी आर गोइंग टू द कुशिंग्स रिएक्शन, और कुशिंग्स रिएक्शन जो है ये एक तरह का सेरिब्रल इस्केमिक रिस्पॉन्स है, जबकि यहाँ पर बीपी लो नहीं है। उसकी वजह क्या है, सेरिब्रल इस्कीमिया कैसे हो गया, सीएसएफ प्रेशर जो है किसी डिजीज की वजह से बढ़ गया, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो कोई और वजह हो। तो सीएसएफ प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो बाहर से कंप्रेस हो जाती हैं। जब बाहर से ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो ब्रेन का रुक जाता है। फॉर दैट रीजन सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स इन द नेम ऑफ कुशिंग्स रिफ्लेक्स ऑपरेट्स एंड इट इंक्रीजेस द बीपी दैट वाज नॉर्मल प्रीवियसली। The rise in the blood pressure causes a reflex bradycardia। ये दूसरा फर्क है। पहला फर्क ये था कि वहाँ बीपी 60 मिलीमीटर से मरकरी से कम बल्कि 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंचा हुआ था, और यहाँ पर बीपी बॉडी का नॉर्मल है लेकिन सीएसएफ प्रेशर ज़्यादा है। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पर रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हुआ है बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ वाजोमोटर सेंटर, जबकि कुशिंग्स रिएक्शन में रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हुआ है क्योंकि बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो जब आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर्स ने फील किया कि ये बहुत ज़्यादा वाजोकंस्ट्रिक्शन से बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उन्होंने कार्डियक सेंटर को डिप्रेस किया, और कार्डियक सेंटर के डिप्रेस होने से ब्रेडिकार्डिया हो गया। So the blood pressure rise is more than the intracranial pressure, and this restores the blood flow to the medulla. Now we start the description of those rapid measures that do not involve the central nervous system. आपका क्या ख्याल है, इसमें क्या चीज़ होगी? ये ज़्यादातर केमिकल चीज़ें हैं। So number one of them is renin angiotensin 2 vasoconstrictor mechanism. इसमें आपके पास BP decreases, and when this BP decreases the renal blood flow decreases. तो जब किडनी में ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी। So the salt reabsorption at macula densa decreases. जब फिल्ट्रेशन कम होगी तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी। बीपी कम होगा तो रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी और रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट व्हेन इट डिक्रीजेस एट द मैकुला डेंसा, this causes release of a substance called renin from the macula densa. Renin causes formation of angiotensin 1 from angiotensinogen. So एंजियोटेंसिनोजिन एक प्रोटीन है जो कि लिवर प्रोड्यूस करके प्लाज्मा प्रोटीन थ्रो करता है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। जब बॉडी में रेनिन प्रोड्यूस होता है तो वो एंजियोटेंसिनोजिन से थोड़ी से अमाइनो एसिड्स काट देता है तो एंजियोटेंसिन 1 बन जाती है। एंजियोटेंसिन 1 इज एक्टेड अपॉन बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और कहाँ पर, इन द कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ लंग्स, so that angiotensin 2 is formed। इसमें से भी थोड़े से अमाइनो एसिड और निकल जाते हैं तो angiotensin 2 बन जाती है, and that is a powerful vasoconstrictor। So whenever the blood pressure becomes low, the renin angiotensin vasoconstrictor mechanism appears. Renin is produced by the kidney as a result of decreased blood flow to the kidney, decreased filtration and decreased reabsorption. This renin produces angiotensin 1, and then angiotensin 1 is converted to angiotensin 2, and this causes vasoconstriction। अब इसमें कोई आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स तो नहीं आई हैं, लेकिन एक केमिकल सब्सटेंस ने ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की है, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। दूसरी चीज़ जो कि हेल्प करती है, अब ये आपकी जो आपकी एंजियोटेंसिन 2 थी दैट वाज अ केमिकल सब्सटेंस, अब आपका आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी कि व्हेन द फोर्सेस फॉर फिल्ट्रेशन आर मोर, फिल्ट्रेशन इज मोर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो मेन फिल्ट्रेशन फोर्स है वो ज़्यादा होगी तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। बट व्हेन द फोर्सेस फॉर फिल्ट्रेशन आर लेस, the capillary does not have much water, the capillary colloidal osmotic pressure that is responsible for reabsorption predominates। पानी तो है नहीं, खाली प्रोटीन है, तो प्रोटीन पानी मांगती है, तो जो टिश्यू स्पेसिस में पानी है, तो थोड़ा बहुत पानी भी टिश्यू स्पेसिस में है, दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड, एंड द blood pressure is they are trying to maintain the blood pressure by replenishing the fluid। तीसरा आपके पास है stress relaxation changes in the blood vessel। This is again a physical property of the smooth muscle fiber।
Capillary shift phenomena was physical property of Starling's forces to increase the reabsorption, and stress relaxation is the change in the blood vessel smooth response of the smooth muscle fibers, that if there is any fall in the blood volume, it adjusts the vascular capacity due to intrinsic property of the smooth muscle fibers and vice versa. तो जब भी blood pressure कम होगा, smooth muscles जो हैं वो छोटे हो जाएंगे, तो उनकी छोटी पोजीशनों पर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स क्रॉस ब्रिजेस बना लेंगे और टोन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने की कोशिश करेगा. This is the same slide. We have been seeing the plan of the lecture. इसमें शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में नर्वस कंट्रोल था और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में वॉल्यूम कंट्रोल था. तो जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में हमने CNS इन्वॉल्विंग मेथड्स पढ़े, दैट वर फॉर नर्वस कंट्रोल, और अब बाकी के जो ये फिजिकल थे ये इंटरमीडिएट कंट्रोल था, और फिर उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की. चाहे BP डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज, यही मैकेनिज्म्स काम करेंगे. Coming to the long term control of blood pressure, it is mainly the volume control that is going to maintain the blood pressure in long term. अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसका ब्लड लॉस हो गया है, तो जिस शुरू में जो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स ये हेल्प करेंगे. तो बाद में फिर उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो रिप्लेनिश होना शुरू हो जाएगा, और उसके ज़रिए फिर लॉन्ग टर्म कंट्रोल होगा. सो अगर वो बंदा उस हेमरेज में बच जाता है तो वो डिहाइड्रेटेड होगा, उसकी स्किन रिंकल्ड होगी, क्योंकि उसका तमाम टिश्यू फ्लूइड जो है वो ज़्यादातर रीअब्जॉर्ब हो चुका है, जो भी फ्री फ्लूइड था. अब वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ द BP में ब्लड वॉल्यूम को रिप्लेनिश करके अपना कंट्रोल करेगा. So what is the definition of the blood pressure? It is the pressure exerted by the blood on the walls of the blood vessels laterally. और ब्लड प्रेशर में ब्लड वॉल्यूम की इम्पोर्टेंस क्या है, यह भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, और सोडियम की क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं. So ब्लड वॉल्यूम की क्या इम्पोर्टेंस है ब्लड प्रेशर में? You have to see increase the blood volume by 2%. अगर 5 लीटर ब्लड है तो इसमें 50-100 लीटर ब्लड हो गया ना, तो आप 2% अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसमें कितना ब्लड डाल रहे हैं एक पेशेंट में जिसका 5 लीटर ब्लड है, तकरीबन आप 100 मिलीलीटर ब्लड ऐड कर रहे हैं. इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज बाय 5%. यानी कि अगर 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट था तो अब 5250 मिलीलीटर कार्डियक आउटपुट बन जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम. इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज. क्या होगा, जब आपके पास ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो अच्छी तरह से ब्लड फ्लो करेगा टिश्यूज़ में, और ऑक्सीजन सप्लाई जो है टिश्यूज़ में ज़्यादा हो जाएगी. वाजो कंस्ट्रिक्शन बाय लोकल ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स. जब आपके टिश्यूज़ में ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा तो जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन मिलने पर कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, वो लोकल ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के जरिए कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, क्योंकि उसे ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा मिल रही है. दिस विल इंक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड सो इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय 50%. देख रहे हैं आप, 50% ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है ओनली बाय इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम बाय 2%. सो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड वॉल्यूम टेम्परेरीली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कैसे हो सकता है टेम्परेरीली? आपने पानी ज़्यादा पी लिया, या आपने नमक ज़्यादा खा लिया और उसने पानी को रिटेन कर लिया बॉडी में नमक ने, या फिर आपने किसी बंदे को बेकार में ड्रिप लगा दी. आप जब गांव में जाएंगे ना तो वहाँ पे आधी खवातीन आपको ऐसी मिलेंगी जो ड्रिप लगवाने आई हुई होंगी कि हमें कमज़ोरी हो गई है, हमें ड्रिप लगा दो.
तो वो डॉक्टर को देखना चाहिए कि पेशेंट को वाकई कमजोरी है भी कि नहीं. सो व्हाई इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कैन अकर? इट कैन अकर बाय इंक्रीजिंग द वाटर इनटेक, इंक्रीजिंग द सॉल्ट इनटेक, और गेटिंग एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, जिसे कहते हैं ड्रिप लगाना. वॉल्यूम डिक्रीज कैसे हो सकता है? डिक्रीज इन द वाटर इनटेक. आप रोजा रखा हुआ है, वाटर इनटेक नहीं है, ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, पसीना आ जाए तो, स्वेटिंग से और डायरिया से, इससे ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है. सो ये कंडीशंस हैं इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम की या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम की, जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम हो जाएगा. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ब्लड वॉल्यूम जो है अगर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. उसका मैकेनिज्म अब आपने समझना है. आपकी बुक में ये चार्ट बना हुआ है, इसे यहाँ देख लें चाहे बुक में देख लें, आपकी मर्जी है. When you increase fluid, extracellular fluid in the body, this will increase the blood volume, and this increase in the blood volume will increase mean circulatory filling pressure. मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या है? ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वॉल्यूम मौजूद है, उसके ब्लड वेसल्स के फुल होने की वजह से जो प्रेशर है, उसे मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर कहते हैं. इसे हम वीनस रिटर्न पे के मौके पर जाकर और से पढ़ेंगे. अभी हमारे लिए ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में इतना ही काफ़ी है. जब सारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो पूरी तरह भर जाती हैं, तो इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट, क्योंकि भरी हुई ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो आसान है और पिचकी हुई ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो मुश्किल है. तो जब मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने से बढ़ जाता है, it increases the venous return to the heart, and then when the venous return to the heart increases, this increases the cardiac output, and this increases the blood pressure. One thing also happens when increased cardiac output occurs, more blood is going to the tissues which are now showing increased oxygen supply, and with increased oxygen supply the precapillary sphincters contract, and this increases the total peripheral resistance and the blood pressure increases. So blood pressure increases by two methods. One is increased blood volume, increased cardiac output, increased arterial pressure. Other is auto-regulation in the local tissues and increase in the total peripheral resistance and increase in the blood pressure. तो दो मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इतना बढ़ जाता है. पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर उस वक्त बढ़ता है जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है. तो अब जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हमें करना क्या चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए? एंड सो यू लुक एट दिस चार्ट. व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, वीनस रिटर्न इंक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, कार्डियक आर्टीरियल प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इनटू टीपीआर इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर, सो कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस. This increases the blood pressure, and because of that, in the kidneys, the urinary loss of sodium and water occurs and the plasma volume decreases. किडनीज में जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी. फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, डेफिनेटली रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी. यूरिन वॉल्यूम फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, और यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा. So compensation of temporary increase of blood volume, it is done by the kidney. They increase the loss of sodium and water, increase the urine volume, and this decreases the blood pressure. अब हम देखते हैं कि compensation of temporary decrease of blood volume by the kidneys क्या है. पहले हम पढ़ के आए हैं कि temporary increase of blood volume से क्या हुआ था बॉडी में. अब हम ये देख रहे हैं कि जब ब्लड वॉल्यूम किडनीज में ब्लड वॉल्यूम जो बॉडी में कम हो गया तो किडनीज क्या करेंगे. चलें देखते हैं. डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम causes decreased cardiac output, and this decreases the blood flow to the tissues, and this decreases the oxygen supply to the precapillary sphincters, and that leads to vasodilation. So auto regulation की वजह से decreased blood volume से vasodilation हो गई. That decreases the venous return and the TPR and the blood pressure. Now the blood pressure when it decreases, the baroreceptors feel के blood pressure कम हो गया. ब्लड वॉल्यूम कम होने से सबसे पहले वेजोडाइलेशन होती है लोकल थ्योरी के मुताबिक. फिर उसके बाद बेरोरिसेप्टर्स को पता चलता है कि बीपी कम हो गया है, तो वो
Baroreceptor reflex cooperate करते हैं so that vasoconstriction occurs in the body, and this is through increasing the TPR. It is going to increase the blood pressure. अब ब्लड वॉल्यूम तो लो है, वेजोडाइलेशन से ब्लड वॉल्यूम का मसला तो कम नहीं हुआ. बेरो रिसेप्टर्स ने टीपीआर को तो रिफ्लेक्सली इंक्रीज कर दिया फॉर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, लेकिन अगर ब्लड वॉल्यूम पूरा नहीं होगा तो फिर वो बेरो रिसेप्टर्स अडेप्ट कर जाएंगे और बीपी मुस्तकिल तौर पर लो हो जाएगा. सो उस वक्त व्हेन द बेरो रिसेप्टर्स इंक्रीज द टीपीआर, द ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड बट द ब्लड वॉल्यूम इज स्टिल लो. So what the kidneys do, they decrease the urine output and the blood volume is normalized. And so when the blood volume is normalized, तो फिर बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो अपना नॉर्मल हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल मेंटेन होता है. अब हमने ये देखना है कि टेम्परेरी डिक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम को किडनीज किस तरीके से कंपेंसेट करते हैं. The decreased arterial pressure produces renin by the kidneys. This renin acts on the angiotensinogen that is produced by the liver and is present in the blood. This angiotensinogen is converted to angiotensin 1 by renin. Then the angiotensin converting enzyme converts it into angiotensin 2. Angiotensin 2 causes renal retention of salt and water. ये आपने किडनी में जाके पढ़ना है, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लफ्ज़ याद रखने हैं कि किडनीज एंजियोटेंसिन 2 के ज़रिए सॉल्ट एंड वाटर को बॉडी में रिटेन करेंगे. दिस इंक्रीजेस द आर्टीरियल प्रेशर. Angiotensin 2 is also a vasoconstrictor and it causes vasoconstriction and increases the arterial pressure. The rest of the angiotensin 2 is metabolized by the enzyme angiotensinase. So now we talk about role of sodium in regulation of ECF volume. हम बार बार कह रहे हैं कि सॉल्ट इंटेक इंक्रीज करेंगे या सॉल्ट रिटेंशन होगी किडनी से तो उससे हमारा ECF वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा. तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. नंबर 1, यू टेक इंक्रीज्ड सॉल्ट. स्टेप 1, this increases the osmolality of the plasma and the ECF. मैं प्लाज्मा और ECF क्यों कह रही हूँ, मैं खाली प्लाज्मा क्यों नहीं कह रही, क्योंकि कैपिलरीज में से प्लाज्मा सॉल्ट समेत बाहर आता है. जितना सॉल्ट बीच में डिजॉल्व होता है, जितना ब्लड में रहना होता है उसमें उसकी सॉल्ट कंटेन अंदर रहता है और जो बाहर आता है पानी उसमें सॉल्ट साथ आता है. सो ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीज्ड इन द प्लाज्मा एंड इन द ECF. When this osmolarity is increased, it increases the ADH secretion from the hypothalamus and it produces thirst. When we take water as a result of thirst, or when the ADH antidiuretic hormone is produced from the hypothalamus, this produces retention of sodium and water from the kidney, and the थर्स्ट से भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ेगा और एडीएच से भी जो आप वाटर रिटेन करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा. इसमें पानी ज़्यादा बढ़ता है और नमक कम बढ़ता है. दिस इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम देन इंक्रीजेस द आर्टीरियल प्रेशर, क्योंकि हमें पता है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीजेस. When the arterial pressure increases, the renal blood flow increases and the filtration from kidney increases. When the kidney increases filtration from it, the reabsorption of fluid and salt is less in the is more in the macula densa. जाहिर है रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ा, GFR बढ़ा तो रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ी. Reabsorption of salt and water when it increases, renin production decreases. When renin is not there, angiotensin 2 is not there. And when angiotensin 2 is not there, renal retention of salt and water decreases. How? It produces salt, it produces more salt in the urine. Because of that, there is sodium loss. It produces more water in the urine, and because of that, there is water loss. So sodium loss and water loss both are going side by side, and the kidney loses salt and water. When the kidney loses salt and water, extracellular volume becomes normal and the arterial pressure is almost normal. इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें ज़्यादा अच्छी तरह तो आप ये कहेंगे कि जब आप नमक खा लेते हैं तो प्यास के ज़रिए पानी बढ़ाकर जिस्म की ऑस्मोलैरिटी ठीक की जाती है, लेकिन ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है.
अब ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को किडनी ब्लॉक कर देता है, और जब किडनी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देता है तो सॉल्ट और वाटर दोनों लूज होते हैं किडनी से इनटू द यूरिन। और जब सॉल्ट और वाटर दोनों इकट्ठे लूज होते हैं तो ऑस्मोलैरिटी ठीक हो जाती है, और सॉल्ट की वजह से जो हमारा ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ा था वो कम होकर नॉर्मल हो जाता है और आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है। इस स्लाइड को आप एक दफ़ा देख लें, लेकिन इसको हमने आज पढ़ना नहीं है, इसलिए कि हम, मेरा ख्याल है कि सैचुरेशन हो गई है, इतने ज़्यादा मैकेनिज्म्स हमने वन आफ्टर दी अदर कर लिए हैं कि अब इस वक्त हम इसको ना करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये हम रीनल सेट पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड इट्स रिलेशन टू सॉल्ट इनटेक एंड आउटपुट, ये हम करेंगे अगली मरतबा, और उस वक्त फिर हमारा आगे का लेक्चर जो है वो इससे शुरू होगा। So as we sum up the different mechanisms that can control the blood pressure back to normal in case of hypotension, that is when the blood pressure has decreased, you will see that at 0 seconds the baroreceptor reflex starts operating, and within 5 seconds or so it reaches its height. At 15 seconds and then it is maintaining the blood pressure, but after 30 minutes or 40 minutes, when the other features have come into action, the effectiveness of the baroreceptors decreases, and so you can say they have adapted or whatever. They stop operating and other mechanisms start coming. Within 10 seconds or so, the chemoreceptors reflex will start operating, and in 30 seconds it will stop coming, and then the CNS ischemic response. If the blood pressure is very low, it will come, otherwise it will not come.